वी आर जस्ट कंज्यूमिंग व्हाट वी वांट टू कंज्यूम. कुछ भी आपके आइडियाज को कॉन्फ्लिक्ट करता है, इजी टू ब्लॉक इट आउट. अभी माहौल क्या हो गया है, यू हैव टू डू दिस एनोनिमसली. मतलब कुछ फेक बना के तुम कुछ भी पोस्ट करो, क्योंकि अपने आईडी से लोग बहुत कुछ बोलना नहीं चाहते. मैं एक स्टैट देता हूँ तुमको. अभी एवरेज टाइम that a person spends in an organization, and this is based on some study conducted by LinkedIn very recently, is 2.8 years, the tenure. मैं मिलेनियल्स का प्रतिनिधि नहीं हूँ. हमने बहुत ज्यादा आई थिंक अभी मतलब आइडियाज बिलीव की तो अभी भी हम बात करेंगे, बट हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एंड डिफरिंग व्यूज ऑन सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना. आई वांट टू ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन इन द नेक्स्ट सेगमेंट टू relationship and conflicts in relationship, and how do you think like we as a generation resolve those conflicts, majority of the people. So Okay. that's where I want to come next. So and इसमें घुसने से पहले ना, because हम tech से आ रहे हैं, तो just as a segue I'll also use how probably tech is helping a lot of relationships as well, where to have lesser number of conflicts, and which is aligned with what we are talking about for millennials. There are so many shows and the awareness is so much right now, right? Like the media is enabling such a change in the society, I feel, or it has probably in the last 10 years maybe, where it has made a normal human being with access to internet so aware. Don't you think so? I have a contradictory view to what you are saying. Okay, I think the more digital things are getting, right from convenience जो भी है, plethora of OTT channels, access to all things on the internet, dating sites is one byproduct of the digital era. टॉपिक है ना. नहीं मैं बोल रहा, सब तो डिस्कस तो सभी करेंगे ना. हाँ, तो आई थिंक इट इज तो पॉर्न, हाँ पहले सीधे में आता था, अभी कभी भी स्ट्रीम कर सकता है, वो भी है. तो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव से नेगेटिव ज्यादा हुआ है डिजिटल के कारण, मेरे मुताबिक तो. ओके, इट हैज मे बी देयर आर चंद कुछ लोग हैं जो अच्छे चीजें कि हमारे मेरे वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी गो ऑनलाइन एंड सी हाउ कैन आई बेटर माई सेल्फ. नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए नहीं, बट जनरली आप जो कंज्यूम भी कर रहे हो, आपने लगता मीडिया हैज बिकम मोर अवेयर कि कुछ टाइप की चीजों में मतलब इज समथिंग दैट वी शुड नॉट टॉक अबाउट और टच अपॉन. जैसे कि फैट शेमिंग यूज्ड टू बी लाइक nobody knew it's wrong to do it when we were growing up, right? No, but फैट शेमिंग अभी भी आई थिंक दोस्तों में तो अभी भी पूरा फैट शेमिंग चल रहा है. वो तो हो सकता है कि मूवी में ना, कपिल शर्मा कर रहा है. हाँ मूवी में ना दिखा था, वो नेटफ्लिक्स पे आता है. तो नेशनल टीवी है ना, नेशन कैन वॉच एनीवन. तो आई डोंट थिंक We are national TV. so relationship we're talking in a romantic relationship perspective, Yeah. right? So I think romantic relationship के लिए जो digitization हुआ है, it has only increased conflict. I don't think it has reduced. तो कुछ any views on the topic? I agree with Baba. I mean, I can't think of examples where more digital interaction has improved relationships or awareness. I mean, I again would come back to the same point that people get provoked so easily on the internet. Forget about political beliefs or religious beliefs. Even if you say make a comment against what they've just commented, people get provoked. So the tolerance level has definitely gone down, and awareness maybe yes, but then that awareness has led to people form an opinion or believe in an opinion to get an identity. So for example, bhakts or liftards or whatever, these are all terms or names coined by people on Twitter. हाँ मतलब लेकिन these are not the majority of the people, right? This is a sect of the society where both ends they exist. But मेरा सवाल ये है कि तू अगर ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करेगा, and by तू I mean an average Indian millennial, तो would they want to get into a conflict, or would they first this thing would be to no, I don't want to get into it? For me, surely not. But for most others I've seen, yes, they would. Yeah. I see that on WhatsApp every day within the family. Wow. So हाँ, तो इसमें I think all of the tolerance level, right? एक और भी चीज एक सोचना पड़ेगा. Most of the millennials, right, are now जो नौकरी कर रहे हैं हमारे टाइप के लोग,
are in sort of a middle management kind of a position in their companies, right? Most of them have subordinates, what you call reporting to them and all that stuff, right? So be it a male or female, husband or जो भी है. अभी क्या हुआ है कि when you are like a fresher, right? तुमको मतलब there is nobody reporting to you, तुम बॉस नहीं हो कहीं से, right? अभी तुम्हारे मतलब you feel like a boss all the time. ऑफिस में जाते हो तो देयर आर पीपल रिपोर्टिंग टू यू, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो कहीं पे भी, तुम ऐसे जिसमें से बोलो तुमको मन है तुम चले गए यूरोप 2 दिन के लिए घूमने के लिए, तो सब कुछ में इतना तुम्हारे पास थोड़ा फीलिंग ऑफ पावर जो है ना, आई थिंक दैट हैज कम इन द मिलेनियल्स लाइफ, तो वो दैट हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप्स आल्सो आई फील. नहीं, मैं तो ग्रोइंग अप की भी बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर राइट नाउ, बट टेक्नोलॉजी जब से भी आई है तब से हम बात कर रहे हैं. एंड आई गेट बोथ ऑफ योर पॉइंट्स एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप एज वेल. आपको लगता है दोनों को कि टेक्नोलॉजी हैज और द मीडिया हैज ओनली इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, increase conflict between relationships. yeah, but increase conflict tension, see sometimes conflict might be conflict होना चाहिए, but mind में भी conflict, cold war चलता रहता है ना, so that also is a conflict, right? It might not come to the fore, but it's a cold war, so वो conflict तो ज्यादा ही हुआ है. तुमने कुछ सीरीज देख लिया, तुमने कुछ सीरीज I've देख लिया, seen people fighting over the मेरी picture नहीं like, हाँ तो पिक्चर नहीं लाइक की and all this stuff, right? which is हाँ तो पिक्चर तो लाइक करना है, करना ही तो मतलब कोई नहीं, बट हाँ तो नहीं करने सबको ही करना चाहिए. सब लाइक करो, हम जो भी पोस्ट करेंगे लाइक करते रहो, डोंट गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अस. भाई वो भी हाँ? भाई क्यों नहीं आना चाहिए उन्हें कॉन्फ्लिक्ट में हमारे क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं तो अवॉइड करूँ. तो अच्छे लोगों के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट सही है. लेकिन आप अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है एक रिलेशनशिप में तो हाउ डू यू रिएक्ट? आई एम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या तो आई एम प्रो कॉन्फ्लिक्ट इन, तो मुझे तो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा लगता है. इन द स्टार्टिंग ओनली आई सेड राइट, प्रो कॉन्फ्लिक्ट माइट बी टू बैड स्टेटमेंट, बट मुझे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूं तो मैं घुटन महसूस करता हूँ, तो मैं तो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता हूँ. तो दो रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करता है? व्हाट इज योर लाइक फर्स्ट दिस थिंग? So my first instinct is to take a step back and avoid. If at all I get involved, I will not get like too much into the fight. I would just keep quiet and then eventually talk about it maybe later if needed. Otherwise, I'll just move on. So I try to find the easy way out. Yeah, when you try to have the peaceful way out, may not be the easy way out. Peace. The most peaceful way out. हाँ तो मेरे लिए I don't think about the peaceful way out consequences so much. उस मोमेंट पे मुझे अगर कॉन्फ्लिक्ट करने से खुशी मिल रहा है, मैं तो भिड़ जाता हूँ. सही. बहुत एक्सट्रीम है, लेफ्ट राइट है यहाँ. फूफा हो बाबा. फूफा मतलब शादी में होता है फूफा. अच्छा वो वाले फूफा. हाँ तो मैं तो मुझे इन्हें में तो मुझे मजा ही आता है कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो सच है. एड्रेनलिन रश पर जो भी बोलते हैं ना, वो थ्रिल तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट में आता है. बाद में रिग्रेट करता हूँ मेनी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम पे तो मजा आता है. मजा ही तो लाइफ में चाहिए, राइट? अगर आपको कन्फ्लिक्ट करना हो बाबा तो बाबा के साथ नहीं हाँ मतलब वो कर सकते हैं, बट तुमको पीस में मजा आता है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट में मजा आता है, तो अलग थॉट प्रोसेस है. बट जनरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक हिम. तो कमेंट्स में आई थिंक प्लीज टेल अस आप which side which one do you more relate to? Are you the one who get into conflict a lot? What about you? Which side do you हाँ, relate to? तुम ये तो बताओ comment में. मेरा तो बहुत मिक्स है. मैं तो कभी कभार बहुत इम्पल्सिव भी होता है जो मैं रिग्रेट करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई कि मैं अवॉइड कर पाऊँ. मतलब मेरा भी फर्स्ट वही होता है आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम कि अवॉइड कर पाऊँ, विच इज नॉट ग्रेट. आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा अवॉइड भी नहीं करना चाहिए सारा. But that's my सारा तो first तू अवॉइड नहीं भी कर पाएगा ब्रो. एक थ्रेशोल्ड होता है हर किसी का. वो बोलते हैं ना, जब तक बाहर कचरा है आप नजरअंदाज कर सकते हो, जिस दिन कचरा आपके घर में होने लगेगा आप आवाज उठाओगे. बात वही है. लेकिन वही है देखो, जैसे तुम जब तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि कचरा आपके घर में ऑलरेडी हो रहा है, इट इज अबाउट दैट. लेकिन बेसिक देखो बात जो रहता है, तुम दोनों को शांति ज्यादा पसंद है, राइट? Hmm. शांति और पीस इज व्हाट यू आर सीकिंग, राइट? पीस इज गिविंग यू द मोस्ट थ्रिल Yeah. और हैप्पीनेस. मुझे कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिखता है तो कूद जाता हूँ. पीस उतना मायने नहीं रखता है, उसमें कूद जाना, उसके अंदर घुस जाना, उसको और अगर पीस चिकन पीस हो तो चिकन पीस हो तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाऊंगा. चिकन के लिए तो कुछ भी करेगा साला, तो वो अलग कहानी है.
बट हाँ, तो वही है. सही है. अब लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, which is conflicts at workplace. Hmm. And do you think there is a trend of how millennials react to conflicts at workplace? Is it, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि Is there a काफी, trend? मेरे को लगता है कि काफी सॉर्टेड है लोग, मतलब लोगों को पीस ऑफ माइंड इज फर्स्ट टू देम. तो काफी लोग मतलब कि would skip very quickly if they are not meeting the vibe or the culture. So I've seen a lot of people doing that, like a lot more than I have seen the previous generation of the people working with me doing that. Hmm. So, मतलब vibe is an important factor for Vibe. Yeah. That's the word. Yeah, vibe, culture, Yes, whatever vibe. you call it. ओके भाई. Vibe. Vibe, अच्छा, vibe. वही आपको तो सुनना तो वही सुनना. अच्छा, नहीं, ठीक है. वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या मतलब what do you think? How पीयूष तुझसे start करते हैं कि मुझे यार workplace पे, yes, of course, so workplace पे you're a different person, right? I mean, in different scenarios you're a different person, Hmm. right? And in some way, like you said, there would be a side of you which would be more aggressive, say on the work front. If you lead a team and you're in say sales role, you need to be aggressive because that role demands so. So I think on the work front, while as much as I would want to avoid a conflict, but if I have to, hmm. I take the first, like you in a fight you blow the first punch. So I'm that person. I think one more thing is that the possible consequences of the conflict, okay, also determine how much you want to get into the conflict or not. Okay. For example, in a workplace kind of environment, right, the consequences are very high to get into a conflict. Okay. Right from हाँ मतलब एक कुछ तुम ड्राइंग बोर्ड में कुछ डिजाइन थिंकिंग चल रहा है, वहां पे एक डिस्कशन इज अ नहीं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ कि अगर हम GTM डिसाइड कर रहे हैं इंडिया का, और उसमें अगर मेरा थॉट प्रोसेस अलाइन नहीं होता है, या मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो इन whichever room I'm sitting, I would contribute. That again, that's saying Even if it causes a conflict, and that conflict I'm only going to enjoy because the purpose is the same, to create the best GTM. I think that also depends. Like in my view, it depends on the consequences. For example, let's say you are presenting something to your CEO or let's say your divisional head or whoever, right? And you know कि ये आदमी दिल पे ले लेता है, conflict करूँ तो मेरा next year का promotion रुक सकता है. I am just saying. Yeah. Okay. When you know the consequences of your conflict are going to be either negative or tending to be negative, okay, so then I think the propensity to conflict would be very less. मतलब लेकिन मेरे लिए personally, and I don't know if it is true or not, but for a lot of people, but अगर if it is driven by curiosity, to know more, I think I generally do not hold myself back from asking something, and I don't know if it has happened and I'm not aware of it, but I've never seen that being taken in a bad way. उसमें वही मैं Again, if your intent is What right, maybe. अगर तुम मतलब जनरल मिलेनियल्स की बात कर रहे हो ना, माय व्यू इज कि मिलेनियल्स ऑफिस वाले एनवायरनमेंट में तो जितना हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं. अच्छा, ठीक है, मतलब वो लोग राइट हो रॉन्ग हो, दे डोंट वांट टू बी इन द बैड बुक्स ऑफ पीपल. ओके, इन ए ग्रुप काइंड ऑफ एनवायरनमेंट तो और ज्यादा. ठीक है, तो पीपल अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. 1-to-1 फिर भी हो सकता है, केबिन में जाके कुछ बोल देंगे, मुझे भैया ठीक नहीं लगा, ऑल दैट स्टफ. बट किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आप उसमें But on the contrary, we are quite upfront and outspoken as a generation as compared to previous generations. And the generation after us is even much more outspoken, right? I deal with Gen Zs, and I can say that with a lot more conviction, because it's very difficult to deal with them. They're quite outspoken, and I feel like I am also outspoken even when I was, say, employed. And that is the beauty of this generation, that as compared to previous generation, we are much more outspoken. So we do not avoid conflicts on the work front specifically, because we are way more clear than what we want, than our parents or say our seniors, about what we want and how we want it. I mean, as compared to previous generation, it's always comparative, right? So I think we don't avoid conflicts as much as our previous generations did. could be in a comparative scale तो मे भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है कि आर यू इज ए कॉन्फ्लिक्ट विद योर सबऑर्डिनेट, कॉन्फ्लिक्ट विद योर कॉलीग, इज ए कॉन्फ्लिक्ट विद योर बॉस और सुपर बॉस. सबका अलग अलग कहानी होगा. इट इज लाइक यू माइट बी
very conflict we oriented talk about as a generation. हाँ, वो सब छोड़ दो, आपकी Yeah. पोजीशन क्या है क्या नहीं. उसके लिए अलग अलग होगा ना फॉर नहीं, एग्जांपल एज अ जनरेशन even as a newbie Yeah. at a corporate setup, you would be much more, say, expressive in, giving opposing views as compared to previous generation. But would you only do that Whether you would risk it or not is a separate question. with the right intentions because you believe in making Yes, something? yes, of course. We see, it's not like you're Like in a driven, school yeah. or in a college where you're making points just for the sake of it. Yeah. It's the common goal is to grow the business, Yeah. right? नहीं नहीं वैसे वाले बंदे भी काफी है होते हैं, जो डीसीपी वाले बंदे हैं होते हैं 100% होते हैं चापलूसी वाले. हाँ. But I'm saying कि generally, मतलब our generation, what I have seen and with people that we work with are mostly our generation, like our age and our level. I've seen that we as generation are much more expressive and beyond a point. Of course, threshold would vary from person to person, but beyond a point, we don't hold back. Yeah, but that is only on the work front, right? Yeah, we were talking about only on the Right. work front. Yeah, but at workplace, about personal conflicts, we're not talking about. No, nothing. वो नहीं वो तो अलग है It's So, not तो about, वहाँ पे behavior consistent है. it's only about the work. Only about the work. Okay. Perfect है. तो हम लोग अब I'm just coming to the final thoughts now, where we have somehow talked about बाबा बिल्कुल भी conflict averse नहीं है, ये full on conflict averse है, and I also tend towards my right on this. है ना, बट यहाँ पर हम लोगों को अब हमने कॉमनली तो बात करी है कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस मिलेनियल्स आर जनरली कॉन्फ्लिक्ट एवर्स जनरेशन. have less propensity to get into तो conflict. अब हमें ये बात करनी है, जस्ट वी हैव टू क्लोज विद गिव आवर थॉट्स एंड क्लोज I disagree. I think millennials are, with the amount of intolerance that is increasing, millennials are more prone to have conflicts as compared to previous No, generations. no, more prone. And do they get also- into No, more it is about जैसे previous generation था. because Choice you bonus need to versus- understand millennials also comprises of the other side of India, which is rural India, right? There are a lot of, like, you go to northern parts of the country. उसने लास्ट टाइम भी शायद कोई बात की थी कि उसने गोली चला दी, उसने चेंज मांगा उससे, उसने गोली चला दी. So you can't generalize is what I'm saying. कि and नहीं तो that is also conflict averse bro, because I cannot handle this ये तो conflict. कॉन्फ्लिक्ट और आपने आग में वो डाल दिया, नहीं, पेट्रोल this डाल is easy way to shut the conflict. दिया. तो उसके कितने Bro, कॉन्सिक्वेंसेस? divorce is the same thing. डिवोर्स के कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होते. नहीं, consequences तो हर चीज. This is also This being is a conflict crime. averse. This is When divorce you not are a crime. cancelling out somebody, that is also like, ये तो भाई तूने जान से मार. हाँ, correct. This is a conflict No, averse wait, person. let's say You are not able to handle that point of view. important क्वेश्चन है कि डिवोर्स को तुम कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूसिंग बोलोगे ना अवॉइडिंग बोलोगे. Correct. एंड बोलो. हाँ मतलब वही है. Conflict. अगेन पॉसिबली उसको पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. Conflict averse. Correct. इज इट कॉन्फ्लिक्ट Anti कर रहे अवर्स हैं ना. और इट इज कॉन्फ्लिक्ट. एक तो है कि यार वो कॉन्फ्लिक्ट एंड हो गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट अवर्स नहीं हो सकता. Yeah, I have ended that. I wanted to. I could have a lot of सारे divorces नहीं, but a हाँ. lot of cases, and जो majority of the millennials के divorces के reasons भी है, right? Whether we talk about financial is of course one of the big reasons, right? And globally, not in India, is also the mismatch in the like wife match नहीं करती basically, है ना? तो वो wife match नहीं करती तो is a in a way you are saying कि आप आई थिंक एक सर्कल है कि डिजिटाइजेशन ज्यादा हो गया, चॉइसेस ज्यादा आ गया, उसके लिए लोगों के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया. नाउ कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिफरेंसेस ज्यादा हो गया, डिफरेंसेस कारण फाइनल तुमको थ्रेशोल्ड रीच कर गया, अभी और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, तुम डिवोर्स ले लेते हो. सो इट्स अ विशियस साइकिल है. नहीं, बट ये तो मैं स्टार्टिंग से ग्रोइंग अप से हमने बात करी ना बाबा, हम्म. मिडिल क्लास वाली बात करी हमने, तो सिर्फ डिजिटल से नहीं. नहीं मैं बोल रहा हूँ इट्स अ साइकिल बेसिकली. हाँ ना आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ साइकिल कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिवोर्स एज एन एंटिटी तुम अगर लो और ब्रेकअप लेकिन killing somebody is a conflict averse or not? हम्म A person shooting somebody. अकॉर्डिंग टू मी. कॉन्फ्लिक्ट एवर्स. हाँ मतलब इन द सेंस उसने कि इतना सोचा नहीं ब्रो, कोर्ट अरे कचहरी. नहीं देखो तो ऐसा कौन उसने एट द मोमेंट बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, खत्म. देखो पकड़ा नहीं जाऊंगा ये सोचा अरे, होगा. अरे, कोर्ट कचहरी का उसके बाद सोचा होगा. अरे वो तो छोड़ दो, यूएस ने ओसामा बिन लादेन को एग्जीक्यूट कर दिया. दैट इज कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस ओनली ना. दैट इज एंडिंग. हाँ, मतलब अवॉइडेंस. यू आर एंडिंग. यू आर एंडिंग, यू आर नॉट अवॉइडिंग. But yeah, you have ended that conflict. यार एक नॉट है, उसको आपने अनटाई देखो, किया. उसमें दैट्स नॉट अवॉइडिंग. दोनों तरह हो सकता है कि उसके कारण
व्हाट यू कॉल, क्या था उसका? या ठीक है अवॉइडेंस भी बोलो लेकिन व्हाट दोनों काइंड तो- ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स डू यू वांट टू यू आर बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट इज it can cause further this thing हाँ, it can cause. death of people or terrorism activities Hmm. or it could be losing your vote bank or it could be another election, it could be anything on the line. Hmm. But if I avoid this conflict Hmm. तो वो पर्पस भी नहीं पता कि वो कॉन्फ्लिक्ट ही अवॉइड कर रहे थे और क्या था वो. हाँ, मतलब इन द सेंस कि But you are trying to say for any prisoner basically capital punishment is conflict avoiding. कॉन्फ्लिक्ट, नो आई डोंट, नो, वी हैव टू लुक, एक्चुअली लुक इट फ्रॉम टू एंड, Yeah. कि वो फर्दर क्राइम करेगा कि नहीं करेगा. इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल, माइनॉरिटी रिपोर्ट बनाते हैं. नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम उस एंगल से देखो कि ओसामा को भी एंगल ले लो कि उसको मार दिया तो वी हैव प्रिवेंटेड 1000 अदर कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम हैपनिंग. दैट इज वन वे. एक हो गया कि उसको मारने से उसके नीचे वाले लोग एग्रीवेट हो जाएंगे और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो यू कैन नॉट से फॉर श्योर ऑन ऑफ दिस whether it's actually conflict reducing. But क्या पर्पस था वो करने का वो भी नहीं पता ना, तो इसलिए नहीं पता कि हाँ, this particular case this सामा particular- वाला छोड़ दो. हाँ, But generally मैं बोल रहा हूँ capital punishment हम्म, for anybody. हम्म. Do you think that is conflict avoiding or what is it? Or This is- सामा conflict? पे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया पता है. वो अलकायदा के गाने सुन रहा था. अलकायदा की बोल रही थी. इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो नहीं वो blush कर रही थी, बोली नहीं कुछ. तो वो सामा मेरे गाने सुनता है. तो कातिल गाने हैं मेरे. तो और अलकायदा, एक गा दो. अलका, अरे उसी अलका से अलकायदा नाम है हाँ. क्या? अलग रिवोल्यूशन. और अलकायदा से अलका का नाम है. नहीं, अलका इज नॉट दैट ओल्ड. कम ऑन. नहीं, अलकायदा वो अलकायदा सामा बाद का में बना है. तो फिर उसने नाम रखा अलकायदा. अलकायदा तो बाद में बना है. ओसामा का तो हिज फादर वाज, अलकायदा इज मीन After- आफ्टर अलकायदा. Yeah, you don't know that. अरे अरे अलका seriously. अलकायदा बचपन में एक बार घूमने गई थी अफगानिस्तान. हम्म. तो वहां पे बच्चों के साथ उसने गाना गाया था, कौन सा गाना है? है लकड़ी का काठी काठी का घोटा. तो वो उसका, अलका ढूंढना है अरे वहां पे अफगानिस्तान में गाया था. इस यूनिवर्स में. हाँ, तो वहां पे साइड में तब गार्डनर का बेटा था वो ओसामा बिन लादेन. उसने तब उसको देखा अलकायदा को, तो पसंद आ गई गाना. उसके बाद अलकायदा ही फॉर्म. Anyway, फिर उसने बोला कि तुम मम्मी यहीं गाओ तो नाचो मेरे लिए. और ये गूगल में सर्च करें. तो अलकायदा उसामा ने शुरू किया मतलब ओसामा शुरू किया. ये सच है. प्रैक्टिकली तो अलका याग्निक ने शुरू किया ना आप लोग. नहीं, शी वाज द इंस्पिरेशन. उसने शुरू नहीं किया. इंस्पिरेशन देना, गाना सुन के उसने टेररिस्ट ग्रुप तो ना बनाया होगा बाबा. नहीं, गाना Inspiration उसके नाम से बना है. नाम हर नेम वाज द इंस्पिरेशन. तो सिर्फ अलका क्यों नहीं रखा फिर? हम्म. वो अलका का कायदा, अलकायदा ना, अलकायदा मतलब अलकायदा. अलकायदा मतलब थोड़ा सा सुर में सुर गान का वो पेट्रोनाइजर था ना, सुर दे दिया उसको. कायदे में रहता था कायदे में. इसीलिए अलका है. अलकायदा. अलका को देख के भी वो कायदे में रहा. हाँ ठीक है, वो तो उसका पर्सनल कायदा था. यहाँ पर आ गई घूम फिर के अलकायदा की बात करते हैं कि तुम्हें लगता है कि रिस्क एवर्स नहीं है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो नहीं. ओ सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट अभी एवर्स सुना है नहीं वो है. बड़ोड़ा में क्या केस हुआ. वो तो मार दिया. अनदर राउंड. हाँ वो आई सॉ द, फिर ओम नमः शिवाय भी बोल रहा था वो. कुछ भी बोल रहा था वो. बट दैट इज निकिता ये कॉन्फ्लिक्ट. बट दैट इज नॉट एवरीबॉडी इज व्हाट आई वुड से. और मेरे को पता भी नहीं वो जेन जी है कि क्या है. But- I'm not saying कि कुछ इससे नहीं, कितने. I think most of the people in the generation are little sensible. या देखो उनको कॉन्फ्लिक्ट तो पसंद तो है देखना, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो बिग बॉस नहीं चलता इतने साल. ठीक है, बिग बॉस चल ही रहा है उसी पे. अब आई किसी और का कॉन्फ्लिक्ट देखना तो वो बट तो ह्यूमन नेचर ही होगा. डेटा इस पे तो मेरे को नहीं पता, बट व्हाट आई फील विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल वेरियस अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा ही है. कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़े. और मिलेनियल, Whether I personally choose not to get involved or not, that's my personal बट कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं. बट मिलेनियल्स उसे सीख कर रहे हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन. एंड वो भी सीख कर रहे हैं. see our world view actually डिस्कशन में भी वही आया जाता. we have to sort of restrict it to टायर 1 सिटीज में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये वाला ही क्रम. अरे बाबा टियर 4 तक तो सच है ही. तो एक काम Yes, करते हैं, tier 4 पहले तक वर्ल्ड ही. से इंडिया पे, इंडिया से अभी टियर 1 में आ गए. अब हम सिर्फ अपनी चीजों की Digital बात कर रहे हैं. advent for tier 4 is 100% हाँ, clear. वो बोलो मतलब रिएक्शन इन ए सेमी अर्बन काइंड ऑफ अ क्लस्टर, वहां पे मिलेनियल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वर्सेस हम तुम और मैं कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इज वेरी डिफरेंट. वही मैं बोल रहा हूँ, वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज
but the reactions are very different. Yeah. So we cannot. It's about मतलब हम लोग It is shaped by many things, जैसे आपने हाँ, पहले ही बोला था. तो ठीक है. तो हम It's लोग not- our generalization is our world view only. हम्म. कि नौकरी कर रहा है, सीनियर मैनेजर या मैनेजर लेवल पे है, वो फेसबुक में जाकर सुना हमारे दोस्त तो कोई नहीं बोल रहे हैं ना, बोल रहा है कि कोई नहीं बोल रहा है ना, पता नहीं. मोस्टली नहीं बोल रहा है, रिपरकशंस के डर से नहीं बोल रहा है, मैं अपने नाम से नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर रहे लोग, इसीलिए आपने इंजन किया. बोल रहा हूँ मैं, कोई नहीं कर रहा है, राइट. बट वही तुम एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाओ जो नॉर्मल कोई काम कर रहा है या तो कुछ कर ही नहीं रहा, देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है. आई एम जस्ट सेइंग, सो वी डोंट नो, द आंसर इज वी डोंट नो. तो हम लोग अरे अरे जो नहीं है तो मानना पड़ेगा ना, सब तुम जानते थोड़ी हो. मैं तो कुछ नहीं जानता. हाँ, तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि हम लोग जो जनरलाइजेशन बट कर रहे हैं, कलेक्टिवली हम लोग तीन मिल के बैठ के बात करने का पर्पस ये है ना कि हम जाने. हाँ, या फिर कहीं पे पहुंचे. नहीं, नहीं, जा- मैं 1 घंटे बात करने के बाद मैं नहीं जानता. अरे अरे नहीं जानना इज द वो तो है ही. नहीं, हमारा पर्पस जानने का नहीं है, हमारा पर्पस है टू शेयर आवर ओपिनियन, व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक. वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एन ओपिनियन कि एक टीयर 3 सिटी में मिलेनियल्स कैसे एक्ट रिएक्ट कर रहे हैं. वी डोंट इवन नो. वो करना भी सही है, हम इतना जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए हाँ. बाबा कि मोस्ट ऑफ द मिलेनियल्स हाँ. दैट यू हैव इंटरेक्टेड विद, व्हिच इज जो भी है वो, हमारे जैसे लोग हैं. तो सब वो हमारे जैसे नहीं क्या. अरे तुम्हारे कौन से बाबा, this is where I say आप गांडू हो. नहीं, You're saying that previous generation was much more confrontational Yeah, in a relationship. in whatever aspects of How their life. our mothers, I mean, I don't know about you, but I'm saying in general, our mothers have suffered all through their lives because they were not expressive. How do you say that, our previous generation was much more confrontational or expressive? I've seen so many, my aunts, my mothers, my sisters, specifically about women, because I've seen that in the family. They were not confrontational. They can't be confrontational. As compared to my current cousins, like cousins my age, they're much more confrontational. Makes sense. Yeah, I have no opposing thought to that. So we But क्या मतलब हम मान रहे हैं कि millennials are conflict averse or not थोड़ा conflict? सोचना पड़ेगा. हम्म. नहीं मतलब क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग निकल के आ रहा है, सही बात है. क्योंकि निकल के आ रहा है कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गए हैं, और अभी तुम नौकरी में कॉन्फ्लिक्ट कम हो रहा है, तो अलग अलग एस्पेक्ट पे अलग आ रहा है ना. तो इट्स डिफिकल्ट टू गिव वन फाइनल थिंग कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट प्रोपेंसिटी टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका KPI बनाऊंगा. KPI तो बना सकते थे हम, लेकिन we have not taken that. आई थिंक ओवरऑल आई विल फाइनली एग्री विद पीयूष ओनली. मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट, द प्रोपेंसिटी टू गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजायर टू बी लेस, मैंने अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कम ही करते हैं लोग कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस. प्रीवियस जनरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट को लोग हम लोग ज्यादा करते थे. मिलेनियल्स आर मोर कॉन्फ्लिक्ट Prone. than the previous generation. I think that's what I would say. But yeah, so I would say that for me it is, I feel most of the millennials are conflict averse. I think spiritually as a generation we have grown. We have been at the helm of so many transitions. We have broken so many cycles, which Are you Well- calling Rakhi Sawant spiritual? मैं एज अ जनरेशन बात कर रहा हूँ. आई डोंट नो उसकी क्या स्पिरिचुअल जर्नी है ब्रो, हु एम आई टू कमेंट. लेकिन जनरली मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस तो बड़ा है इन दिस जनरेशन, व्हिच हैज मेड अस मोर maybe calm and peaceful generally, or to seek peace at least for most of the people. That's my view. But do let us know your views as well in the comments. What do you feel? If you don't like something that we said, please call it out. If it is by Baba, please write it in caps. And ये क्या करें? otherwise, that's it from this episode. These were our views about millennials and conflicts. So, see you again later. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.